Good morning, students. In the previous lecture, we discussed about some properties of Laplace transform. Now, in this video, we are going to discuss the next topic, that is periodic function of Laplace transform of periodic function. So, first of all, we discuss the periodic function. Actually, अपने periodic function की जो concept है वो फूरियर सीरीज में फर्स्ट ईयर में एमपी में पढ़ी है. ओके, periodic function मतलब क्या होता है कि after the some interval we get the same function. And for that particular quantity is called as a period. Okay, and periodic function is totally time dependent. Actually हमारा Laplace transform is time dependent है, इसलिए periodic function also time dependent. Okay, so now first the concept of periodic function. Now definition: the function of f of t is said to be periodic if the function f of t is said to be periodic function of period t. यहाँ पे हमने पीरियड कैपिटल टी लिया है. इफ एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी मीन्स दैट कैपिटल टी विद पीरियड मीन्स दैट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट कंप्लीट इंटरवल ऑफ टी वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो एफ ऑफ टी प्लस टी इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड टी इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज टी विद पीरियड. आफ्टर दैट फॉर एग्जांपल साइन ऑफ टी प्लस 2 इक्वल टू साइन टी मीन्स 2 पाई इंटरवल के बाद आपको साइन की सेम वैल्यू मिलेगी, इसलिए साइन फंक्शन इज पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई. सिमिलरली कॉस ऑफ टी प्लस 2 पाई आल्सो कॉस टी बिकॉज कॉस इज आल्सो पीरियडिक फंक्शन विथ पीरियड 2 पाई. ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियडिक फंक्शन. देन next we see the Laplace transform of periodic function. Now Laplace of f of t, Laplace of periodic function, that f of t with a periodic function. If f of t with a periodic function of period t, then Laplace of f of t equal to 1 upon 1 minus e raised to minus s into capital T integral 0 to capital T e raised to minus s into small t f of t dt. That is the Laplace transform of periodic function if f of t with a periodic function with period capital T. Okay, that is the definition of Laplace of periodic function. और हमें एग्जाम्पल में इसी का यूज करना है. अगर पीरियडिक फंक्शन फाइंड आउट करना है तो हम इस डेफिनेशन का यूज करेंगे. ओके, आफ्टर दैट सम फार्मूलाज, ये फार्मूले हमारे एग्जाम्पल में यूज होंगे. इंटीग्रल e रेज़ टू at sin dt इक्वल टू e रेज़ टू at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू a sin bt माइनस b cos bt. सेकंड फार्मूला है इंटीग्रल e रेज़ टू at cos bt इक्वल टू e रेज़ टू at अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू a cos bt प्लस b sin bt. एक्चुअली दोनों भी फॉर्मूले हमने M2 में यूज किए हैं ना. सिंपली देखो, साइन और कॉस चेंजेस है. साइन अगर रहता है तो नेगेटिव साइन है, कॉस अगर रहता है तो पॉजिटिव साइन है. अगर साइन है तो फर्स्ट टर्म में साइन आएगा, सेकंड में कॉस आएगा. अगर कॉस रहता है इंटीग्रल में तो फर्स्ट टर्म में कॉस, सेकंड में साइन. ओके, स्लाइड चेंजेस है यहाँ पे. देन उसके बाद एग्जाम्पल, फाइंड द Laplace transform of periodic function f of t equal to kt by t and that small t is lies on the interval 0 to capital T where f of t equal to f of t plus capital T. It means that f of t with a periodic function. आपको एग्जाम्पल जब आपका जो एग्जाम्पल है वो आपका एग्जाम्पल किस टॉपिक का है ये आप कहाँ से देखेंगे? यूज द हेल्प ऑफ दैट डेफिनेशन. अगर यहाँ पे f of t plus t है then it become the periodic function. That is the example of periodic function. Okay, उसके बाद इसका solution देखेंगे हम. So we have to find the Laplace of f of t and f of t with a periodic function here because we have given that the definition f of t equal to f of t plus t. So its solution, we have given that we have given here the value of f of t equal to kt upon capital T and the range is 0 to t to capital T. Okay, अब देखो हमारा एग्जाम्पल पीरियडिक फंक्शन का एग्जाम्पल है और हमने कैसे देखा? विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन. ओके, डेफिनेशन से हमने डिसाइड किया है कि ये एग्जाम्पल पीरियडिक फंक्शन का है. सो इसके लिए हमें डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी पीरियडिक फंक्शन की. वी नो दैट Laplace transform of periodic function. अब देखो Laplace transform क्या है पीरियडिक फंक्शन का? Laplace of f of t
is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus st integral 0 to capital T e raised to minus st f of t dt. ओके, अब देखो हमें यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करना है। तो सबसे पहले हमें हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें इंटरवल क्या है वो देखना है। देखो यहाँ पे इंटरवल क्या है, 0 टू कैपिटल टी है, मतलब यहाँ पे इंटरवल कैपिटल टी एज इट इज है, तो हमें इंटरवल चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि हमारा एफ ऑफ टी क्या है, के टी अपॉन टी, सो वी हैव टू फाइंड लैप्लास ऑफ के टी अपॉन कैपिटल टी which is 1 upon 1 minus e raised to minus s into capital T। अब देखो इंटरवल तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि गिवन इंटरवल भी कैपिटल T 0 to T है, और फॉर्मूला जो है डेफिनेशन में भी इंटरवल 0 to T है। तो यहाँ पे 0 to T एज इट इज e raised to minus s t f of t, what is f of t, k t upon t, okay, into d, k t upon capital T। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी है, तो k अपॉन कैपिटल T एज अ कांस्टेंट, तो टेकिंग आउटसाइड k अपॉन कैपिटल T इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस एस टी इंटीग्रल 0 टू t e रेज टू माइनस एस टी इंटू t dt। ओके, नाउ सॉल्व द इंटीग्रल। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रल में e रेज टू माइनस एस टी इंटू t है, तो इंटीग्रल कैसे सॉल्व करेंगे हम, यूजिंग द इंटीग्रल बाय पार्ट। अब इंटीग्रल बाय पार्ट अप्लाई करने के लिए हमें चूज करना है फंक्शन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन रहेगा हमारा t और सेकंड फंक्शन क्या रहेगा, एक्सपोनेंशियल, यूजिंग द LIT रूल। नाउ यूज इंटीग्रल बाय पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज लैप्लास ऑफ kt अपॉन t इज इक्वल टू k अपॉन कैपिटल T इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस एस टी। नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली जनरलाइज बाय पार्ट यूज करेंगे। सो फर्स्ट फंक्शन t इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, अब इंटीग्रल ऑफ e रेज टू माइनस एस टी क्या आएगा, e रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय माइनस एस, क्योंकि इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे एस क्या बनेगा आपको, कांस्टेंट। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब डेरिवेटिव ऑफ t 1 इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड e रेज टू माइनस एस टी अपॉन a माइनस एस और माइनस एस स्क्वायर, और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी, 0, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ 1 इज 0 एंड लिमिट एज 0 टू कैपिटल T। ओके, सो इट बिकम k अपॉन कैपिटल T इंटू 1 माइनस e रेज टू माइनस एस टी इंटू, अब देखो लिमिट हम किसको अप्लाई करेंगे, ओनली t को, क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू t है, तो यहाँ पे आएगा हमारा t इंटू ई रेज टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस पर बनेगा हमारा प्लस ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर, लिमिट एज 0 टू t। नाउ अप्लाई द लिमिट्स, k अपॉन t इंटू 1 माइनस ई रेज टू माइनस एस टी। Now upper limit is t, so put t equal to t into e raised to minus st by minus s minus e raised to minus st by s square, upper limit। now lower limit के लिए lower limit 0 है, so put t equal to 0। if we put t is 0 here, so we get 0 into that term is 0, first term is 0 minus second term e raised to power s into 0, e to the power 0 is 1, so it become 1 upon s square। okay, so it become k upon t into 1 minus e raised to minus st into, अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड टर्म हमें एलसीएम मिलेगा, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज s स्क्वायर, s स्क्वायर एलसीएम आप निकाल सकते हैं। एक काम करेंगे हम, फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड टर्म देखो, सेकेंड एंड लास्ट टर्म कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ई रेज टू माइनस एस टी डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर। ओके,
So it becomes is equal to k upon t into 1 minus e raised to minus st into first, second and third term can be written as first term as it is upon minus s, सेकेंड अपर लिमिट t है हमारा, तो यहाँ पे भी हमारा st बनेगा, st, ओके। हाँ, सेकेंड एंड थर्ड टर्म कैन बी रिटन एज 1 माइनस e raised to minus st डिवाइडेड बाय s स्क्वायर, ओके। अब इसको हम और क्या कर सकते हैं, टेकिंग दी एलसीएम निकाल सकते हैं, या तो हम इसको एज इट इज भी रख सकते हैं, के अपॉन 1 टी इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी इंटू एलसीएम इज एस स्क्वायर, एलसीएम एस स्क्वायर, एस स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एस स्क्वायर बाय एस, तो यहाँ पे एस आएगा, मैं सिंपली 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी, और ये टर्म बनेगी हमारी माइनस ऑफ ये माइनस, और यहाँ पे एस से मल्टीप्लाई एस टी e raised to minus st, okay, so it become k into 1 minus e raised to minus st minus of s into t into e raised to minus st divided by t into s square into 1 minus e raised to minus st, and which is the required Laplace transform of the given function, and the given function is a periodic function with period capital T. Okay students, after that we will discuss the another example. So students, the next example, here we have to find the Laplace transform of rectified sine wave function defined by f of t equal to sin omega t in the interval 0 to pi by omega. Second value of function is 0 in the interval pi by omega to 2 pi by omega, and we are given that f of t plus 2 pi by omega equal to f of t. ओके, अब देखो यहाँ पे हमें फंक्शन की दो वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू 0 है, सेकंड वैल्यू साइन ओमेगा टी है, तो इंटरवल भी दिए है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कंप्लीट इंटरवल क्या है। व्हाट इज द कंप्लीट इंटरवल, इंटरवल 0 टू पाई बाय ओमेगा फर्स्ट वैल्यू के लिए, और सेकंड वैल्यू के लिए पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई ओमेगा, तो हमारा कंप्लीट इंटरवल क्या आएगा 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। और कंप्लीट इंटरवल इज 0 टू 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। आफ्टर दैट अब है प्रॉब्लम किस टॉपिक का है ये हमें डिसाइड करना है। अब देखो यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है, एफ ऑफ टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, मतलब that is similar as f of t plus capital T equal to f of t, मतलब ये एग्जाम्पल हमारा किस टॉपिक का है, पीरियोडिक फंक्शन का है, क्योंकि that is 2 pi by omega एक that is a period, and after that particular period we get the same value of function। देखो 2 pi by omega के बाद हमें फंक्शन की सेम वैल्यू मिलेगी, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है हमारा पीरियोडिक फंक्शन का, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है, here we have to use the definition of Laplace transform of periodic function, okay, and we have to simplify it. So first of all we write down the definition, we write down the given function. So our given function is f of t is equal to sin omega t, first interval, second value is 0 pi by omega to 2 pi by omega. Here we write down first here complete interval is, what is the complete interval, 0 to 2 pi by omega, okay, that is complete interval. Also we have given that f of t plus 2 pi by omega is equal to f of t, अगर एक गिवन नहीं है तो भी हम कैपिटल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, गिवन है तो भी आप कैपिटल टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपको डेफिनेशन गिवन नहीं है तो उसमें आपको दिया रहेगा फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, ये वर्ड गिवन रहेगा। अगर डेफिनेशन इस टाइप में गिवन नहीं है तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या आएगी हमारी
ये जो इंटरवल 0 to 2 पाई बाय ओमेगा को हमें कंपेयर करना है 0 to t से, तो हमें अगर कंपेयर करते हैं तो हमारा t क्या मिलेगा, हमें 2 पाई बाय ओमेगा। देखो आपको प्रॉब्लम में एक तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसा वर्ड गिवन रहेगा, नहीं तो फिर डेफिनेशन गिवन रहेगी। अगर डेफिनेशन गिवन है दैट इज आवर कैपिटल टी, अगर डेफिनेशन गिवन नहीं है तो जो भी हमारा कंप्लीट इंटरवल रहेगा उसमें से जो अपर लिमिट रहेगा दैट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल टी। ओके, इज इट क्लियर? अब हमें डेफिनेशन अप्लाई करना है। नाउ वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब देखो क्या है हमारी डेफिनेशन, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी इंटीग्रल 0 to t e raised to minus st f of t dt. ओके, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। अब हमें यहाँ पे एफ ऑफ टी की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन हमारे पास फंक्शन की दो वैल्यू है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैपिटल टी की वैल्यू पुट करेंगे 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी, वी डिवाइड, हाँ, इंटीग्रल 0 to कैपिटल टी क्या है हमारा 2 पाई बाय ओमेगा ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। ओके, इसके बाद अब देखो, अब हमारा जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, इसकी दो वैल्यू है, एक है 0 to पाई बाय ओमेगा में, सेकंड है पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा में। हम इसको डिवाइड करेंगे 0 to पाई बाय ओमेगा ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और सेकंड वैल्यू है हमारी फंक्शन की पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा में है ई रेज़ टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, दोनों में वैल्यू 1 by 1 पुट करनी है। तो देखो यहाँ पे 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी। अब देखो 0 to पाई बाय ओमेगा में फंक्शन की वैल्यू क्या थी, साइन ओमेगा टी, सो इंटीग्रल 0 to पाई बाय ओमेगा ई रेज़ टू माइनस एस टी, और फंक्शन की वैल्यू क्या थी हमारी साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। बट जो हमारा सेकंड इंटरवल है पाई बाय ओमेगा टू 2 पाई बाय ओमेगा, उस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारी 0, सो सेकंड इंटीग्रल बिकम 0, सो सेकंड इंटीग्रल हमारा ऑटोमेटिकली 0 बन जाएगा। नाउ हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे साइन है, एक्सपोनेंशियल टर्म है, दोनों टर्म है, और दोनों भी टर्म का डेरिवेटिव इंटीग्रल कंटिन्यूअसली आते रहेगा, तो यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं, फिर वो यूज द फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, सिंस क्या फॉर्मूला है हमारा, इंटीग्रल ई रेज़ टू ए टी साइन बी टी डी टी इज इक्वल टू ई रेज़ टू ए टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू साइन है तो ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी। ओके, ये फॉर्मूला यूज करना है और हमें इंटीग्रल सॉल्व करना है। सो इट बिकम लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1/1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी so we write in here Laplace of f of t is equal to 1/1 minus e raised to minus st। हाँ, इंटीग्रल का e raised to power at, यहाँ पे क्या है e raised to power minus st, e raised to power minus st upon a square plus b square। what is a with the coefficient of t, here t का multiple minus s minus of s square प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए क्या है हमारा माइनस एस, ए साइन बी मीन्स ओमेगा टी माइनस बी, बी इज ओमेगा, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी। ओके, एंड लिमिट एज 0 to पाई बाय नॉट 0, हाँ 0 to पाई बाय ओमेगा, फर्स्ट इंटरवल 0 to पाई बाय ओमेगा। ओके, नाउ अप्लाई द लिमिट्स 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस एस टी। हाँ, अब देखो अगर हम अप्लाई अपर लिमिट अप्लाई करेंगे t की
जगह पाई बाय ओमेगा तो हमें क्या मिलेगा, e रेज़ टू पावर माइनस एस इंटू पाई बाय ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस एस। देखो t की जगह पाई बाय ओमेगा, ओमेगा ओमेगा कैंसल, you get sin pi, sin pi is 0, so first term 0, second term minus of omega cos, omega omega cancel, cos pi is minus 1, okay, upper limit minus of lower limit। अब देखो लोअर लिमिट के लिए t की वैल्यू 0, e टू द पावर 0 क्या बन जाएगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इन ब्रैकेट यस इंटू साइन 0 0 माइनस ओमेगा इंटू कॉस 0 1, ओके, सो इट बिकम 1 अपॉन 1 माइनस e रेज़ टू माइनस एस टी इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस यस पाई अपॉन ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस ओमेगा, हाँ ओमेगा मतलब यहाँ पे आएगा ओमेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस माइनस प्लस ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, दैट इज द सेकेंड टर्म। ओके, आफ्टर दैट Laplace of f of t is equal to 1 upon 1 minus e raised to minus st इंटू, अब देखो दोनों में एलसीएम निकलेगा एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, सो न्यूमरेटर में ओमेगा कॉमन, ओमेगा इंटू 1 प्लस ई रेज़ टू माइनस पाई एस पाई अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओके। और अब हमारी यहाँ पे कैपिटल टी की वैल्यू थी 2 पाई बाय ओमेगा, सो स्टूडेंट यहाँ पे वैल्यू लिखनी है 2 पाई बाय ओमेगा, ओके, सो हियर एस इंटू 2 पाई बाय ओमेगा, ओके। अब सॉल्व करना है इसे, so numerator is omega into 1 plus e raised to power minus 2 not 2 pi s upon omega, denominator s square plus omega square into 1 minus e raised to minus 2 pi s upon omega, okay। So now numerator as it is 1 plus e raised to power minus pi s upon omega and denominator देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, denominator can be written as 1 minus e raised to power minus pi s divided by omega whole square, okay, second term। Now it can be written as अब देखो न्यूमरेटर तो एज इट इज रहेगा हमारा ओमेगा इंटू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा एंड डिनोमिनेटर देखो एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर का अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 1 एक टर्म मिलेगी 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा, और सेकेंड टर्म मिलेगी 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस पाई एस अपॉन ओमेगा बाय यूजिंग द फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो देखो यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सिंपली हमें मिलेगा ओमेगा अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस पाई एस बाय ओमेगा, एंड विच इज द रिक्वायर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पीरियोडिक फंक्शन का एग्जाम्पल समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको होमवर्क के लिए है। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
पीरियोडिक फंक्शन। ओके, यहाँ पे आपको पीरियोडिक वर्ड गिवन है। पीरियोडिक फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 1 एंड सेकंड वैल्यू है -1, इंटरवल 0 to t टू अल्फा बाय 2 और सेकंड है अल्फा बाय 2 to t टू अल्फा। देखो ये जो नेक्स्ट एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए है, यहाँ पे पीरियोडिक फंक्शन वर्ड गिवन है, तो आपको पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन यूज करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारा कैपिटल टी क्या रहेगा, कंप्लीट इंटरवल 0 to अल्फा है, तो अपर लिमिट अल्फा है, तो कैपिटल टी की वैल्यू क्या रहेगी आपकी अल्फा। ओके, और यहाँ पे दो वैल्यूज है फंक्शन की, तो आपको दो इंटीग्रल मिलेंगे, दोनों इंटीग्रल आपको सॉल्व करने हैं। लास्ट में कंबाइन कर सकते हैं आप सेपरेटली सॉल्व करके लास्ट में कंबाइन भी कर सकते हैं, या तो आप एट ए टाइम सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में हमने पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन उसके कुछ एग्जाम्पल देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। आई होप आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा। सो थैंक यू वेरी मच।